Hello everyone, this is Subhendu Das, your physics mentor, and welcome to our session 10, that is of our chapter Electric Charges and Fields. It is available in class 12 CBSE as well as CHSE Physics. So in this session, basically we will discuss the electric field intensity due to dipole at any point. And in our previous session, that is session number 9, already we have discussed up to axial line position and equatorial line position पे कैसे electric field intensity calculate करेंगे, okay, due to dipole. So without any delay, let's start our session. That is session 10. Okay. So in order to understand the electric field intensity due to dipole at any point, we have to focus upon axial line as well as equatorial line. दोनों का हेल्प लेना चाहिए. फिर से हम लोग प्रीवियस कंटेंट को थोड़ा रिवाइज करेंगे. तो आवर हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल at any point. So let us consider two charges of dipole as shown in figure. And in our figure, this is the midpoint of the dipole O. This is your minus Q charge, and this one is plus Q charge. This position A and this position is. So at any point P consider करें हम लोग, let us think P is any point. P is any point due to dipole at which electric field intensity is to be calculated. And previous जो भी दो डेरिवेशन था उसमें हम लोग क्या लिए थे, OP का डिस्टेंस R एंड माइनस Q से प्लस Q, ये जो वेक्टर दिखाई दिया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो दिस इज योर P वेक्टर. तो यहाँ पे बस इतना याद रखो, let us think this is the R vector, that is position vector of P with respect to midpoint of the dipole. And ये जो R vector and P vector के बीच में जो एंगल, let it be theta. Let it be theta. Now this P vector has two components. एंगल अटैचिंग कंपोनेंट को हम लोग मानेंगे P cos थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट को क्या मानेंगे हम लोग? P sin थीटा. अदर कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू फर्स्ट कंपोनेंट. तो दिस इज योर P sin थीटा. तो ये है तुम्हारा P वेक्टर. एंगल अटैचिंग कंपोनेंट विल बी P cos थीटा. लेट इट बी P1. एंड ये कितना होगा? P2 इज इक्वल टू P sin थीटा. वेरी गुड. तो इतना कंप्लीट करने के बाद क्या सोचना चाहिए? देखो, तो थोड़ा सा प्रीवियस कंटेंट को थोड़ा रिकॉल करो. देखो यहाँ पे था माइनस Q, यहाँ पे था प्लस Q. ये एक्सियल का डायग्राम पता चल रहा है, सेशन 9 का कंटेंट. ये देखो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन पे तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवेलेबल था. नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या था? एलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो एलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट द इंटेंसिटी व्हिच इज अवेलेबल, दैट इज ड्यू टू axial position, obviously. So if point of observation lies along the direction of dipole moment, then it shows axial line position. And axial line position पे short dipole के लिए फॉर्मूला क्या था? 2kp by r3. सोच पा रहे हो? तो उसी हिसाब से देखो, तो इन आवर फिगर फॉर P cos थीटा dipole moment, इसके डायरेक्शन में तुम्हारा P पॉइंट ऑब्जर्वेशन. देखो point of observation lies along the direction of dipole moment, obviously. So for point of observation P represents axial line position for dipole moment P cos theta. तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए point of observation P represents axial line position, represents axial line position for dipole moment P cos theta. For dipole moment
P cos थीटा। तो इसके लिए तुम्हारा ये P पॉइंट पे इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट P cos थीटा कितना होगा, along द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वो इंटेंसिटी अवेलेबल होगा, वो हमको तो पता है एक्चुअली। अरे एक्सियल पे क्या है, along द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज अवेलेबल। तो इसको मान लो E1, ये मान लो E1 वेक्टर। वेरी गुड। तो उसी हिसाब से आंसर क्या लिखना चाहिए हमको, तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2kP1 बाई RQ। P cos theta that is dipole moment P1 whose value is equal to P cos theta। 2kP by RQ था उसमें, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है, P1 लिया हूं मैंने। तो E1 का आंसर क्या होगा, 2kP cos theta divided by RQ। And remember this K is Coulomb's constant। अगेन और एक चीज देखो, मैं शो कर रहा हूं, ये डायग्राम पे हम लोग डेरिवेशन किए थे, देखो ये वाला। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर। तो ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, ये डाइपोल मोमेंट को क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P देखो, ये जो R वेक्टर दिखाई दिया तुमको, O से लेकर P, OP इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट फर्स्ट थिंग। तो जो भी इक्वेटोरियल लाइन होगा ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट। पक्का। तो उस पॉइंट P पे नेट इंटेंसिटी कहां पे आ रहा था, नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन आ रहा था ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर डाइपोल मोमेंट। पक्का। देन उसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। उसी सेम कंटेंट को यहां पे अप्लाई करो। और P sin थीटा देखो, ये है तुम्हारा P sin थीटा डाइपोल मोमेंट, उसको परपेंडिकुलर क्या है, R वेक्टर। वेरी गुड। एंड उसी परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर P पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट अवेलेबल है। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P रिप्रेजेंट्स ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन फॉर द डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। तो एट दैट पॉइंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। वेरी गुड। ये होगा तुम्हारा डाइपोल, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो हो गया, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये है तुम्हारा E2। तो ये तुम्हारा इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P2 दैट इज P sin थीटा एट पॉइंट P। तो क्या लिखना चाहिए इसमें, ऑल्सो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑल्सो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P रिप्रेजेंट्स इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन, equatorial line position for dipole moment, for dipole moment कितना, P2 is equal to P sin थीटा। ये हमारा डाइपोल मोमेंट। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P लिया हमने ना, उसको हम लोग क्या ले जाएंगे, S मान लो। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को S मान लो, बार बार P रिपीट हो रहा है ना, P को हम लोग डाइपोल मोमेंट लिए हैं, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को S मानने से ये S लिखो, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन S परफेक्ट। तो P2 इक्वल टू P sin थीटा। तो E2 का आंसर क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन फॉर शॉर्ट डाइपोल, व्हाट इज आंसर, KP बाई RQ। तो यहाँ पे KP2 डिवाइड बाई RQ, तो दैट विल बी KP sin थीटा डिवाइडेड बाई RQ। Our aim is to find the resultant intensity, electric field intensity at point S, at point S। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, इंटेंसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो ये P cos थीटा P sin थीटा दोनों परपेंडिकुलर, along the P cos theta E1 is available, opposite to P2 E2 is available, that means these two are perpendicular to each other। very good। तो नेट इंटेंसिटी क्या होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमको, इतना ही लिखेंगे हम लोग आज, E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर perpendicular to each other, are perpendicular to each other। तो नेट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E net
वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। E1 का वैल्यू क्या था 2kp cos थीटा बाई आर क्यू उसका होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बाई आर क्यू पावर 2 then whole root over. बस we have to simplify this equation. After that you will get the resultant intensity. So कितना होगा देखो इसका होल स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब r टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r टू द पावर 6 होल रूट ओवर। तो आफ्टर दिस कॉमन क्या आ जाएगा बोलो k स्क्वायर p स्क्वायर बाय r टू द पावर 6 कॉमन देन यहाँ पे बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट। तो k p स्क्वायर k स्क्वायर p स्क्वायर का स्क्वायर रूट k p r टू द पावर 6 का हो गया r क्यूब जो भी ब्रैकेट में देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा वेरी गुड एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा 1। तो फाइनल आंसर E नेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना kp बाई r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट ओवर। So this is our final expression as per the required data. देखो अभी तक कुछ ना कुछ कंप्लीट हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नेक्स्ट उसका डायरेक्शन क्या होगा देखो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे उसका डायरेक्शन। अच्छा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का यहाँ पे जो भी डायग्राम हम लोग किए हैं ना तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए तो डायरेक्शन क्या होगा देखो पहले एक पैरेललोग्राम कंसीडर करो इन दोनों को बेस करके then diagonal starting from their common tail point gives their resultant vector। तो यहाँ पे मैं तुमको शो कर रहा हूँ this will be the direction of resultant intensity। so as per the figure this will be our E net vector। very good let this E net vector makes an angle phi with respect to E1 vector। यहाँ पे दो चीज तुमको याद रखना चाहिए what is theta theta is the angle between p vector and r vector। so theta is the angle between dipole moment vector and position vector of point। and what is phi is the angle between is our angle between कितना E net vector and E1 clear। तो in this case ये तो 90 डिग्री हो गया तो tan phi कितना होगा ये E2 मींस एक पैरेललोग्राम होगा तो दिस विल बी E2। तो tan phi का वैल्यू क्या होगा E2 बाई E1। तो क्लास 11 का जो कंटेंट को हेल्प करके हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेक्टर E नेट वेक्टर। so as per the figure so from figure simply we can write from figure what is tan phi is equal to E2 by E1 and what is E2 by E1 E2 का वैल्यू क्या था kp sin थीटा बाय देखो E2 का वैल्यू क्या था kp sin थीटा बाय r क्यूब। तो kp sin थीटा बाय r क्यूब डिवाइडेड बाय E1 का आंसर क्या था डिवाइडेड बाय 2kp cos थीटा बाय r क्यूब। तो आफ्टर कैंसिलेशन kp कैंसिल हो गया देखो तो kp कैंसिल हो गया r क्यू कैंसिल हो गया sin थीटा बाई cos थीटा कितना हुआ tan थीटा। तो यहाँ पे मिल रहा है हमको tan phi इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। एंड ये जो रिलेशन अभी तुमको मिल रहा है ना उसको अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो दिस विल हेल्प अस इन न्यूमेरिकल पक्का। तो tan phi इज इक्वल टू हाफ tan थीटा ये एक फॉर्मूला हो गया। एंड अनदर चीज क्या हुआ phi क्या है phi इज द एंगल बिटवीन E नेट वेक्टर एंड E1 वेक्टर। E1 वेक्टर क्या था एक्सियल पोजीशन पे जो P पॉइंट जो एक्सियल पोजीशन शो कर रहा था उस पे जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो E1 वेक्टर। देन थीटा किसके बीच में एंगल P वेक्टर एंड R वेक्टर।
So with this we have completed our theoretical portion. How to find electric field intensity due to dipole at any point due to dipole. I think it is very clear to all of you. देखो, so जो भी क्वेश्चन था ना उसके हिसाब से ऐसे ही तुमको लिखना चाहिए। एंड जो डायग्राम में क्या हूं उसको बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करो, बहुत बड़ा फिगर ड्रॉ करो कॉपी पे, तभी जाकर समझ पाओगे। I think with this we have completed this question. Let's come to numerical series. Let's come to the numerical series related to this question or related to this content. क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है तो फोकस अपन द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। स्क्रीन को देख रहा हूं तो क्वेश्चन तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है एक्चुअली। ओके, तो क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट p। ये एक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट p इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। सो ये है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट p वेक्टर, पक्का। सच दैट इट्स इक्वेटर इज y एक्सिस। देखो एट पॉइंट p located at a distance r, ये पॉइंट p located at a distance r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज अलोंग y एक्सिस। वेरी गुड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन ये y एक्सिस की तरफ है। तो क्वेश्चन ये है क्या, फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ p, फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ p। तो कितना होगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ p मींस थीटा के बारे में तुमको पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। p जो r वेक्टर क्रिएट कर रहा है ना, तो उसका थीटा का आंसर क्या होगा। तो फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ p मींस आवर m क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। m इज आवर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, एंगुलर पोजीशन ऑफ p एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट p। ये का आंसर क्या होगा, ई वेक्टर नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट p। और फाइनेस्ट, बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो थोड़ा सा प्रीवियस कंटेंट को फोकस करना चाहिए हमको। देखो फिर से, तो आज पर आवर फिगर, फिगर के हिसाब से थोड़ा सा मुझे टाइम दो, फिगर को मैं फिर से शो कर रहा हूं अच्छे तरीके से। परफेक्ट, तो दिस इज आर वेक्टर, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन p, देन दिस इज योर e वेक्टर, ओके, y एक्सिस ओरिजिन, ये एंगल कितना, थीटा। परफेक्ट, तो आफ्टर दिस इतना लिखने के बाद हो गया, तो मुझे बोलो ये क्या है एक्चुअली। देखो ये फिगर हम लोग जो किए थे ना, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ड्रॉ नहीं किया हूं, बस ये वाला चीज डाइपोल मोमेंट रेड कलर पे शो कर रहा हूं, दिस इज p। वेरी गुड, तो ये एक वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग पॉसिबल, पक्का। तो ये वेक्टर को यहाँ पे मैं ले आने से, तो देखो इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक लाइन, ये क्या हुआ हमारा, बोल दो, p वेक्टर। ये क्या है, p वेक्टर। अच्छा, ये r वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से क्या मिलेगा, r वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर लो फिर से, बहुत बेहतरीन चीज मिलेगा तुमको। देखो आर वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने के बाद, आर वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने के बाद ये हमारा आर वेक्टर, पक्का। तो पी वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच में जो एंगल वो क्या था, पी वेक्टर आर वेक्टर के बीच में जो एंगल वो थीटा, देखो पक्का। एंड प्रीवियस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, आर वेक्टर, ये वाला डायग्राम देखो देखो देखो, आर वेक्टर एंड ई नेट वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, फाई। आर वेक्टर एंड ई नेट वेक्टर, और इसमें और भी हम लोग लिख सकते हैं, और इट इज द एंगल बिटवीन ई नेट वेक्टर एंड आर वेक्टर। परफेक्ट, तो इसको अप्लाई करो यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, ये एंगल होगा तुम्हारा फाई। एंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो एक्स एक्सिस, पक्का,
and question given E vector is parallel to y axis, that means ये शो कर रहा है x, ये शो कर रहा है y axis। तो थीटा प्लस फाइव कितना मिल रहा है हमको, तो थीटा प्लस फाइव गिवन फ्रॉम फिगर से हमको ये पता चला, ये ट्रिक, थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा प्लस फाइव 90 डिग्री हो गया। तो उसमें फाइव का वैल्यू क्या होगा, फाइव इक्वल टू 90 माइनस थीटा, फाइव विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। और एक रिलेशन हमको पता है थीटा एंड फाइव के बीच में, तो थ्योरी से क्या पता है हमको, फ्रॉम थ्योरी we know that tan phi is equal to tan theta by 2, very good। so instead of this phi you can use 90 minus theta, so tan 90 minus theta, that will be equal to tan theta by 2। अच्छा, tan 90 minus theta is cos theta, cot theta equal to tan theta by 2, very good। cot theta को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 by tan theta, that is equal to tan theta by 2। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिलेगा तुमको, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो स्क्वायर रूट ले जाओ, तो tan थीटा का आंसर क्या होगा, √2। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स रूट। एंड आवर एम इज टू फाइंड एंगुलर पोजीशन P। देखो मिल गया, ये था ना, थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स √2। अनदर केस इज अवेलेबल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर, फॉर्मूला क्या है, E का मैग्नीट्यूड इन एनी पॉइंट का, kp by rq 3 cos square theta plus 1 whole root over, kp by rq 3 cos square theta plus 1 whole root over। अच्छा, वहां पे cos थीटा वैल्यू जरूरी है, तो tan थीटा √2 गिवन है, तो cos थीटा कैसे पता चलेगा, देखो तो गिवन यहाँ पे क्या है, tan थीटा इक्वल टू we have tan थीटा इज इक्वल टू √2। ये √2 को मैं ये लिख सकता हूँ √2 by 1, दैट मींस ये होगा तुम्हारा p by p। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करो, यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ, रेडी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज हो गया, एंड ये एंगल थीटा, तो tan थीटा √2 by 1, ये होगा तुम्हारा √2, ये होगा तुम्हारा 1। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा √2 by यानी आ रहा है, तो ये वैल्यू कितना होगा, √2 स्क्वायर हाइपोटेनस वैल्यू प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर, कितना आ रहा है जल्दी बोलो, ये तो 2 + 1 दैट इज √3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, 1 by √3, वेरी गुड। cos थीटा इज इक्वल टू 1 by √3। वेट फॉर 1 मिनट। तो cos थीटा 1 by √3, सो नेट इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, kp by rq इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल रूट ओवर, तो kp by rq 3 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 by, देखो ठीक से, 1 by √3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल रूट ओवर। तो आंसर क्या आ रहा है, kp by rq, ये हो गया तुम्हारा 3 × 1 by 3 प्लस 1 रूट ओवर, कितना हुआ √2, तो √2 kp by rq, तो √2 kp by rq इज द फाइनल आंसर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट एनी पॉइंट। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली। तो यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज फाई, ये तुम्हारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, थ्योरेटिकल से ये पता चल रहा है tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2, लेकिन उससे पहले व्हाट इज थीटा एंड व्हाट इज फाई, दैट शुड बी क्लियर। ओके, सो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। तो बार बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो थोड़ा, तभी जाकर समझ पाओगे। नेक्स्ट कम टू अनदर क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या दे रहा है देखो, so as per this question, first two identical dipoles are placed as shown in figure, minus q plus q, minus q plus q. If p is the dipole moment in each of the dipole, calculate the electric field at point m. Very good. ये जो पॉइंट m पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस टू डायपोल्स. ये पॉइंट m भी है, देखो ये p वेक्टर का डायरेक्शन पे ही पॉइंट p अवेलेबल है. दैट मींस पॉइंट m shows और रिप्रेजेंट्स एक्सियल लाइन पोजीशन फॉर द फर्स्ट डायपोल. पक्का. एंड इसका देखो ये जो डायपोल दिखाई दे रहा है तुमको, तो ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये क्या होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. एंड दिस इज दिस पॉइंट m, दिस r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर. सो m पॉइंट रिप्रेजेंट्स इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन फॉर द सेकंड डायपोल. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये तुम्हारा फर्स्ट फिगर, ये तुम्हारा सेकंड फिगर. तो यहाँ पे देखो एक चीज मैं शो कर रहा हूँ तुमको, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m. वेरी गुड. तो इसको और एक चीज में ओनली डायग्राम को ऑब्जर्व करो. ये डायग्राम को कंसीडर करो. सी दिस डायग्राम फर्स्ट. तो इन केस ऑफ दिस डायग्राम, यही डायग्राम से ये पॉइंट m एक्सियल पोजीशन शो कर रहा है फॉर दिस डायपोल. तो ये तुम्हारा फर्स्ट, ये तुम्हारा सेकंड फिगर. और फर्स्ट फिगर, इफ पॉइंट m रिप्रेजेंट्स द एक्सियल लाइन पोजीशन, so e वेक्टर इज पैरेलल टू p वेक्टर. सो ये तुम्हारा p वेक्टर, ये तुम्हारा e1 वेक्टर. पक्का. एंड यहाँ पे p वेक्टर का डायरेक्शन क्या है सेकंड पे, माइनस q टू प्लस q, ये तुम्हारा p वेक्टर. एंड e वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू p वेक्टर इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन. सो m रिप्रेजेंट्स इक्वेटोरियल पोजीशन फॉर द सेकंड डायपोल फिगर. तो यहाँ पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट होगा. सो दिस विल बी e2 वेक्टर. तो क्या शो कर रहा है, दोनों परपेंडिकुलर. ये दोनों को बेस करके जो पैरेललोग्राम मिलेगा, डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन टेल पॉइंट, दैट विल गिव अस द नेट इंटेंसिटी एज पर द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. डायपोल मोमेंट तो p दे रखा है ना दोनों केस पे. सिंपल चीज क्या है देखो, तो E1 का वैल्यू क्या है, E1 का आंसर होगा 2kp/rq. एंड E2 का आंसर क्या है, kp/rq. आई थिंक इट इज क्लियर. परफेक्ट. तो तभी जाकर हम लोग इसको कैलकुलेशन अभी कर पाएंगे. ई नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर रूट ओवर. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ E1, तो 2kp/rq होल स्क्वायर प्लस kp/rq होल स्क्वायर रूट ओवर. ये कितना हो गया देखो, 4k² p² 6 प्लस k²p² होल रूट ओवर. कॉमन क्या हो गया देखो, k²p² कॉमन, 4 + 1 देन स्क्वायर रूट. तो 4 + 1 का रूट ओवर क्या है, √5 देन kp/rq. So √5 kp/rq, that is our final answer as per the given question. तो इसको चेक करो फिर से. तो बार बार देखो वीडियो को 1x में ही देखो, समझ पाओगे, क्योंकि ये तुम लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो. आई थिंक ये जो क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया. वेरी गुड. देन इसके बाद क्या हम लोग सॉल्व करेंगे बोलो, और एक न्यूमेरिकल के पास चलो. So what the question is asking, first all of you see, if a dipole is placed at origin having dipole moment p vector equal to this much, find the direction of electric field at r vector. Which of the following is correct? Which of the following is correct? So if a dipole is placed at origin, dipole moment देखो p vector दे रखा है. देखो तीनों केस हमको पता है, एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एनीक्वल. पहले एक्सियल को चूज करेंगे. इन केस ऑफ एक्सियल, रिकॉल द कंटेंट. इन केस ऑफ axial line position, in case of axial line position,
we know E vector is parallel to P vector. पक्का? यस। अच्छा, यहाँ पे तो दे रहा है P वेक्टर एंड R वेक्टर। P वेक्टर R वेक्टर के हिसाब से हम लोग लिखेंगे तो इन केस ऑफ एक्सियल लाइन P वेक्टर इज पैरेलल टू R वेक्टर। वेरी गुड, समझ पा रहे हो? इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R वेक्टर। फिगर सोचो, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम पे ये था P वेक्टर, ये था R वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर थे। तो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन क्या होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, 0 वेक्टर होगा। एंड इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर क्या मिलेगा हमको, देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 व्हिच इंप्लाइज P वेक्टर डॉट R वेक्टर विल बी 0। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी चीज दिखाई दे रहा है तुमको अच्छे से सोचो थोड़ा। P वेक्टर डॉट R वेक्टर 0 होने से क्या मिलेगा, दोनों परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर केस कहां पे है, इक्वेटोरियल लाइन। तो फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन क्या दे रखा है, देखो गिवन P वेक्टर का वैल्यू कितना, आई क्या प्लस 2j क्या माइनस 2k क्या इंटू क्या है 10 टू द पावर माइनस 27 कूलम मीटर, माइनस 27। एंड R वेक्टर क्या दे रखा है 4 3 5 4 3 5 k क्या, पक्का। तो P डॉट R करो, कितना मिल रहा है 4 इंटू यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 4 पता है ना, P x R x प्लस P y R y प्लस P z R z ऐसे 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 5। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक कॉमन चीज 10 टू द पावर माइनस 26। ये मिल रहा है 4 प्लस 6 माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। क्या मिल रहा है 0। वेरी गुड, दैट मीन्स ये जो भी केस हमको शो कर रहा है ना इक्वेटोरियल का केस, सोचो थोड़ा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इक्वल टू दिस। अरे भाई इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन, इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन पे हमको पता है एक्चुअली दिस वाज द क्या था हमारा, दिस इज द P वेक्टर डायरेक्शन माइनस Q प्लस Q। ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन एंड ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन। यहाँ पे P वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहता है, ऐसे, इस डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऐसे। तो E वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू R वेक्टर। तो देखो E वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू R वेक्टर। ओके, ये कौन सा केस हो गया, ओके दिस इज द केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन। पहले डायग्राम को अच्छे से सोचो, डायग्राम क्लियर तो ये क्वेश्चन समझ पाओगे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन मैं कलेक्ट किया हूं। तो इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन क्या है हमारा, R वेक्टर क्या है हमारा E वेक्टर से E नेट वेक्टर और E इक्वेटोरियल वेक्टर इज व्हाट, एंटी पैरेलल टू R वेक्टर। तो R वेक्टर क्या है क्वेश्चन पे देखो 4 3 5। क्लियर? और क्या लिखना चाहिए इसमें, एंटी पैरेलल मींस, ये तो क्वेश्चन हो गया। देखो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट R वेक्टर, इतना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सोचो, E वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू R वेक्टर, ये भी सही है। एंड E वेक्टर इज आल्सो एंटी पैरेलल टू, यस, एंड आल्सो E वेक्टर इज पैरेलल टू माइनस P वेक्टर, पक्का। E वेक्टर इज पैरेलल टू माइनस P वेक्टर, ये भी सही है। तो आंसर, दो आंसर हो सकता है एंटी पैरेलल केस में। यहाँ पे देखो 4 3 5 लिखा है, इसके ब्रैकेट में -4 -3 -5, -4 -3 -5।
ये तो आर वेक्टर, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रुको। तो एज पर द क्वेश्चन ये देखो पी वेक्टर क्या है 1 2 -2, यहाँ पे क्या लिखा है देखो 1 2 -2 के क्या, तो यहाँ पे माइनस दे देने से एलोंग नेगेटिव ऑफ दिस, वेरी गुड, हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ई वेक्टर इज पैरेलल टू नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर। तो पी वेक्टर क्या दे रखा है देखो 1 2 -2, परफेक्ट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे देखो 1 2 -2 माइनस दे रखा है, तो माइनस ऑफ पी वेक्टर आ रहा है या नहीं, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। लेकिन यहाँ पे ऑल्सो ई वेक्टर इज इक्वल इज एंटी पैरेलल टू आर वेक्टर ऑल्सो। तो आर वेक्टर क्या दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप -5 के कैप। तो यहाँ पे भी देखो ये वाला ऑप्शन पे -4 -3 -5 पे दे रखा है, तो ये भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी आंसर है एक्चुअली, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेसिकली पी वेक्टर के साथ जज करने से ये आ रहा है डी, एंड आर वेक्टर के साथ जज करोगे तो, लेकिन उसके बाद कन्फर्मेटरी के लिए तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले जाने से यही वाला चीज, क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं होगा, हाँ ले जाने से जीरो मिलने से पता चल जाएगा। तो लेकिन बेसिकली यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को चूज करने से आंसर क्या आ रहा है डी ऑप्शन को चूज करोगे, क्लियर। एंड ऑप्शन अलोंग -4 -3 -5 इसका भी आंसर हो सकता है, यस, क्योंकि ई इक्वेटोरियल इज एंटी पैरेलल टू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या था मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो ज्वाइन कर रहा है वो आर वेक्टर, एंड ये था हमारा ई नेट वेक्टर, ई इक्वेटोरियल वेक्टर, दोनों एंटी पैरेलल थे। एंड पी वेक्टर क्या था नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, देखो पी वेक्टर एंड ई इक्वेटोरियल वेक्टर दैट इज आल्सो एंटी पैरेलल टू ईच अदर। हो गया ये चीज। तो डायग्राम तीनों का जो डायग्राम एक्सियल इक्वेटोरियल एंड एनी पॉइंट, ऑल द डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास what the question is telling, now see, find the locus of all the points where the resultant E vector will always have a bearing of 45 degree with the axis of short dipole। एक्सिस ऑफ शॉर्ट डाइपोल क्या है, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ शॉर्ट डाइपोल है, ब्लैक कलर पे दिखा रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। तो यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करने से ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, ये तुम्हारा क्या है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। तो ये एंगल क्या होगा हाँ बियरिंग ऑफ 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये टोटल एंगल को हम लोग क्या मानेंगे देखो, इवन मैं लिखा हूं अभी, ये तुम्हारा पी वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा आर वेक्टर, ये दोनों के बीच में एंगल को हम लोग थीटा माने थे। तो गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा है थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 45। ये तुम्हारा बहुत बेहतरीन गिवन रखा है, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे थोड़ा ऑब्जर्व करो। तो थ्योरी से गिवन क्या दे रखा है देखो, गिवन थीटा प्लस फाई कितना हुआ 45 डिग्री। तो विच इम्प्लाइज फाई का वैल्यू कितना होगा 45 माइनस थीटा, परफेक्ट। तो फ्रॉम थ्योरी we know tan phi is equal to tan theta by 2। तो phi का वैल्यू पुट करो, तो tan 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा by 2, परफेक्ट। यहाँ पे tan a माइनस बी फॉर्मूला यूज करो, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a into tan b, that is equal to tan theta by 2, very good। so tan 45 is 1, so 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta कितना मिल रहा है tan theta by 2। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, tan theta into 1 tan theta into tan theta is tan square theta, then equal to 2 into 1 2 minus 2 tan theta। ओके वेरी बेसिक चीज है एक्चुअली। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस यहाँ पे आने से प्लस 2 tan थीटा हो जाएगा,
n minus 2 equal to 0. That means tan square theta plus 3 tan theta minus 2 equal to 0. तो किसके साथ मैच हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको? 1 ही मिल रहा है. एंड बी का वैल्यू क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है. सी का वैल्यू क्या मिल रहा है? -2 ही मिल रहा है. तो एक्स पे आए अभी tan थीटा, तो tan थीटा का आंसर होगा माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2a. आफ्टर सॉल्विंग -3 प्लस और माइनस ये 9 प्लस 8 रूट ओवर ऑफ 17 डिवाइड बाई 2. तो माइनस देखो -√3 -√17 डिवाइड बाई 2 तो नेगेटिव आंसर मिलेगा ना, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे. तो थीटा क्या मिलेगा? सॉरी tan थीटा विल बी इक्वल टू -3 प्लस √17 डिवाइड बाई 2. तो नियरली इक्वल टू ये √17 को √16 मानकर अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट, इसलिए मैं नियरली इक्वल लिखा हूं -3 प्लस 4/2. तो कितना आ रहा है? 1/2 मीन्स 0.5. तो नियरली इक्वल टू थीटा इज नियरली इक्वल टू tan इनवर्स 0.5. Clear? Tan inverse 0.5. So with this we have completed the numerical. I think it is clear to all of you. देखो theta and phi, both of these plays an important role in all these questions. इस previous question पे एक था theta plus phi 90 मिल रहा था, तो easily without the application of tan a minus b formula we can solve that question. क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा को हम लोग 1/tan थीटा लेकर सॉल्व कर चुके हैं. लेकिन ये क्वेश्चन पे 45 माइनस थीटा आ रहा है, तो उसी हिसाब से प्रोसीड करेंगे. बोथ आर व्हाट अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी हम लोग थीटा कैलकुलेट किए थे, इसमें भी थीटा. देखो प्रोसेस कहां पे चेंज हो गया? tan a माइनस b पे. आई थिंक इट इज क्लियर. देखो ये क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया. एक्चुअली वो क्या पूछ रहा था? फाइंड द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स. तो ये p पॉइंट का लोकस मीन थीटा के बारे में पूछ रहा है. यस. So as per the question, our aim is to find the theta value. Aim in the question is to find the value of theta. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आज का लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली हमारा सेशन नंबर 10 से हमारा कंप्लीट हो गया. क्या कंप्लीट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल. विथ सेशन नंबर 10 we have completed electric field intensity due to dipole. तो उसी हिसाब से देखो, तो ये सिस्टम has two charges QA equal to plus 2.5 into 10 to the minus 7 कूलम. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इज अवेलेबल एंड A पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज एंड QB that is B पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज अवेलेबल इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर. तो -2.5 into 10 to the minus 7 that is कूलम. तो लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 -15. परफेक्ट. तो ये तुम्हारा y एक्सिस एंड ये दे रखा है x एक्सिस. तो ये कहाँ पे अवेलेबल है पता चल रहा है तुमको? z एक्सिस पे. यस. तो ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा x एक्सिस, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, क्या होगा? अरे z एक्सिस, ये तुम्हारा z एक्सिस. परफेक्ट. तो पॉजिटिव या नेगेटिव, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट p वेक्टर. तो क्वेश्चन पूछ रहा है तुमको फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. परफेक्ट. तो ये जो प्लस QA का पोजीशन वो कहां पे है रे? 0 0 -15 0 0 -15. वेरी गुड. सो ये होगा तुम्हारा लेंथ में पूछ रहा हूं तो 15 सेंटीमीटर लिखोगे. एंड बी पोजीशन कहां पे है? 0 0 +15. तो ये वाला लेंथ क्या होगा? 15 सेंटीमीटर. तो नाउ ये जो टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर जो डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं ना, ये दोनों का सेंटर टू सेंटर सेपरेशन क्या होगा? 30 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग इसको मान रहे हैं डाइपोल लेंथ. तो गिवन क्या दे रखा है? गिवन डाइपोल लेंथ. डाइपोल लेंथ को हम लोग डिनोट कर सकते हैं 2a लेटर से. कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर. 30 इंटू 10 to the minus 2 that is 3 into 10 to the minus 1 मीटर. ये हो गया डाइपोल लेंथ का वैल्यू. तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? p वेक्टर इक्वल टू q इंटू 2a. क्या? तो Q का आंसर क्या है? एनी चार्ज ऑफ डाइपोल को ले जाओ 2.5 इंटू 10 to the power minus 7 इंटू ये कितना? 3 इंटू 10 to the power minus 1
कितना मिलेगा तुमको के क्या। तो ये कितना हुआ 2.5 इंटू 3 7.5 इंटू 10 टू द पावर कितना -7 दे रखा है ना, यस, इंटू 10 टू द पावर -8 क्या। यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट कूलम, ये होगा मीटर। तो थोड़ा चेक करो ये सही हुआ या गलत हुआ, बार बार इसको चेक करो, चेक करने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली ये सही हुआ या गलत हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन, आई थिंक इट इज क्लियर। तो डाइपोल लेंथ कितना हुआ 2a 30 सेंटीमीटर 30 इंटू 10⁻2 3 इंटू 10⁻1 पी वेक्टर का आंसर होगा q2a के क्या। डायरेक्शन तो पता चल रहा है तुमको, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, along नेगेटिव z एक्सिस रे बेटा, along negative z axis, that we have to focus. So with this we have completed this session of 10, and in session number 10 we have completed so many very important and beautiful numericals. I think this session 10 is very clear to all of you. With this we have completed our session 10. So stay tuned for next update in our session number 11. So what we will discuss, another जो भी चैप्टर पे पेंडिंग है ना सिलेबस के हिसाब से, that part will be covered. बेसिकली टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्वेश्चन को हम लोग चूज करेंगे सेशन नंबर 11 के लिए। क्लियर? तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।